ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ 5 ਤੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੱਬਾ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਰੱਬਾ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤਜਨੀਦਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਾ? ਭਾਈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ 100% ਅਹਿਮਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ 100 ਅਹਿਮਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 20% ਜਾਂ 25% ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ। ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਸਕੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਭਾਈ ਚਲੋ 40% ਕਰ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। 60% ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਂ 50 ਕਰ ਲਓ। 50% ਪਾਕਿਸਤਾਨ 50% ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਔਰ 50% ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਰਪ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਕੌਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ 28,000 ਨੇ ਉੱਥੇ ਯੂਕੇ ਚ? ਹਾਂ ਇੱਥੇ 28,000 ਨੇ 28-29,000 ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਦ ਨਖਰੇ ਹੀ ਪੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਦੇਖੋ ਜੋ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ 80s ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ 90s ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਸਾਈਲਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸਾਈਲਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਡੰਕੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ $60,000 ਲੈ ਪਾਉਂਡ ਲੈ 60,000 ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਉਂਝ ਹੀ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਮਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਵਾਵਾਂਗੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਆਫਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਢੀ ਲੈ ਆਓ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਆ ਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਉਮਰ ਦੇ 70 ਦੇ ਅੰਦਰ 72 ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਖਲੀਫੇ 3 ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪੀਰੀ ਫਕੀਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਪੀਰੀ ਫਕੀਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੀਂ ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਹਫਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਤੇ ਇਹ ਆਮਿਰ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਆਫ ਇਸਲਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਿਬੇਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਲੀਫਾ ਆਫ ਇਸਲਾਮ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਆਮਿਰ ਰਾਜਾ ਤਾਲ ਮਨਾਨ ਤੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੀਕਿਆ ਨਾ, ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚੀਕ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਮਿਰ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ, ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਟਾਈਮ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਆਮਿਰ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਆਮਿਰ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਆਖਣਾ ਉਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਤਦ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਏ ਉਮੇ ਰੁਬਾਬ, ਮੈਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਗੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ। हाँ कि जी वो ट्रक ड्राइवर है। मैं क्या मुझे नहीं पता, तो आपके दोस्त नहीं है? मैं क्या मेरे वो अजीज जो है, मेरी उनसे सलाम दुआ अच्छी है, मैं उनकी पर्सनल लाइफ में नहीं जाता। मैं क्या आपको किसने बताया? नहीं, मैंने अपने कानों से सुनी है ये सारी बातें। मैं क्या मुझे नहीं पता, और मैं ऐसी चीजों में ना जाता ही, लड़ाई वाली जगह पे मुझे जाना पसंद नहीं। मैनू बड़ी दूर दे शहरों लामा आया ताड़े ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਗਰ ਉਹ ਟਰੱਕ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਮਦਨ ਥੋੜੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰਾਮ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਰਾਮ ਸਮਝਦਾ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਲੈਣਾ, ਕਮਾਣਾ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਹਰਾਮ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਮਾਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਆਮਿਰ ਸਿਆਲ, ਅਲੀ ਪਾਈ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਨਾ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਐਟਲੀਸਟ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਛੱਡੋ, ਕੁਝ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਹਦਾਇਤ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਦਾਇਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਨਾ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਨਸਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਥਰਾਈਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈਜਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ, ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਰਫੀਕ ਹਯਾਤ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਾ, ਚਾਹੇ ਕਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਲ ਵਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਲ ਵਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਜਾਓ ਮਿਲ ਲਓ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਨੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਇੰਨਾ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਰੱਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਡਜਸਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਰੱਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਗਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦੇਗਾ।
100% ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਰਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾ ਦੇਗਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਓ ਦੋਨੋਂ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕੈਮਰਾ ਆਪਨੇ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਠੀਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪ ਕरें। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਹੀ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨ ਜਾਣ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆਓ ਬਈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਯੂਕੇ। अस्सलाम वालेकुम मामर भाई की हाल है ठीक हो ਵਾਲੇਕੁਮ ਉਹ ਸਲਾਮ। ਮਤਲਬ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ अब ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਜਰੀ, ਕਿ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਵਰੀ ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ ਤੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ 5 ਮਿੰਟ। अमर भाई मैं वसीम भाई ना दो तीन गल्ला कर सकना कोई ਕਰੋ ਜੀ, 10 काफी ਕਿਲੋ देर ਮੈਂ चुन 5 ਮਿੰਟ ਦੀ हाँ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਬਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸਰੇ ਹਲਾਫਤ ਹੈ ਉਹਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ? ਭਾਈ ਜਾਨ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਇਹ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਗੈਰ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਦੂਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਆਡਿਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੀ ਆਡਿਟ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਆਪਣਾ ਆਡਿਟ ਦਿਖਾਣ ਨਾ। ਸਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਕਿਆ ਤੇ। ਕਹਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਲੇਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਣਾ ਉਹਨੇ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੇਮ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਅਕਾਊਂਟ ਰਹੇ ਦਿਖਾ, ਹੋ। ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਿਖਾ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸੋਰਸ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਸਰ ਸੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਸਰ ਸੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਣਾ ਵਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, 1 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਰਸ ਲੈ ਆਣਾ ਵਾ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੋ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ। ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ। ਅਗਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਓ ਆਪਣੇ। ਔਰ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸ਼ਾਇਦ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦਫ਼ਤਰ ਸੁਣ ਆਓਗੇ ਲਓ, ਨਾ, ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਕਦੋਂ ਕਿਆ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ? ਉਹ ਸਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੂਫ। ਦੂਜੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਚਲੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਤੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰਾਂਦੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵਾ ਪ੍ਰੂਫ, ਆ ਜਾਓ। ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਪ੍ਰੂਫ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਓ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਵਾ। ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਹੜੇ ਬੁਲਾਈਏ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਈਏ? ਮੈਂ ਇਹ ਚਵਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਵਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਕਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਈਏ ਦੱਸੋ? ਹਾਂ, ਬੁਲਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੈਂ ਆ ਅਮੀਰ ਜਾਣਾ। ਸਾਹਿਬ, ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਬੁਲਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 1 ਮਿੰਟ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦਵਾਂਗਾ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਜਮਾਤ ਲਓ। ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਦਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦਵਾਂਗਾ, ਉਹ 2 ਜਮਾਤ ਕਰੋੜ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਮਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਦੋ ਸਬੂਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਉੱਥੇ ਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਲਓਗੇ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰੂਫ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਆਪ ਨਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਖਾਓ ਪ੍ਰੂਫ। ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ।
ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਹਾਂ ਲੱਗੇ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਵਾਲਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਵਾਲਾ ਨੇ, ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਵਾਂਗਾ ਲਾਓ, ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਯਾਰ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਨਾ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਝੂਠਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੇ- ਜਮਾਤ ਤੇ- ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹੇਗੀ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕਹਿ ਕੇ ਰਹੇ ਆਵਾਂਗਾ ਸੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰਬਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਹਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਲਸੇ ਬੰਦੇ ਜਲੂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲੈਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਐਂ ਦਾ ਖੁੰਦਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸਾਹਨਿਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਸ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਲੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ। ਭਾਈਜਾਨ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀਸੀਪੀਓ ਆਫ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਬਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇੱਥੇ ਰਬਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਹਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਸਾਮਾ ਮੁੜਾ ਜਿਹਦੇ ਜਾਓ ਲਾਈਵ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਤਮੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਦੋਂ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਬੁਲਾਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ ਹਾਂ ਆ। ਬੁਲਾ ਲਓ ਹਾਂ अस्सलाम वालेकुम। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ ਮਿੰਟ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਾਲੇकुम अस्सलाम। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਸੀਮ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿੰਬਲਡਨ ਪਾਰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਫਜ਼ਲ ਮੌਸਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਜ਼ਲ ਮੌਸਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਮਾਤ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਠੀਕ। ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹਮ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜਮਾਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਮਾਤ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅੱਛਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਵਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਫੀਕ ਅਮਰ ਹਯਾਤ ਦੇ ਭਾਈ। ਵੀ ਰਫੀਕ ਹਯਾਤ ਦੇ ਵੀ ਵਰਡਿਕ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਔਰ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਇਬ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਸਰ ਮਹਿਮੂਦ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਲੇ ਲੰਬੇ ਜੇ ਜੋ ਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਿਓ। ਹਾਂ ਤੇ भाई, एक मिनट ठहर जाओ। ਬੁਲਾਓ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜੀ ਬੁਲਾਓ ਅਸੀਂ ਨੱਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ वसीम भाई, नट्ठन वाले नहीं हैं वसीम भाई, ये कौन बात कर रहे हैं वाटर साहब बात कर रहे सर जी मैं आपसे बात नहीं करना चाहता ऑनेस्टली क्योंकि आप कल आपसे ना तुम पे आ गए थे सॉरी मेरा एक काम बात करने का तरीका है सॉरी मैं आपसे बात नहीं हैं। करता चलो यार, मैं आपसे सॉरी कर ले। नहीं 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 मैं आपसे बात नहीं करना चाहता सॉरी क्योंकि आप चलो। मैंने आपसे एंड तक आप करके बात की थी ठीक है गिले शिकवे जमात के बारे में हो सकते हैं मगर आदमी को अपनी औकात से नीचे नहीं आना मैं आपसे कल आप करके बात कर रहा था आपने कहा माजरत करें मैंने कहा मैं माजरत करता हूं मगर मैं वो वीडियो निकालूंगा आपकी वो पड़ी हुई है मैंने आज आमिर सिहाल साहब से भी बात की है सुबह कौन कहते हैं सी वो वाली वीडियो वीडियो ढूंढ मैं आपको मतलब मुझे ढूंढनी पड़ेगी हो सकता है मैं गलत हूं इसलिए मैंने कल यार, माजरत जो बात गुजर जाए ना, उसको नहीं दोबारा सोचते होते। ये नहीं, मैं दुनिया आपसे है, बात नहीं करना चाहता उसके कुछ रीजंस ये हैं दुनिया है। आपका यहाँ पे एक यही ना, लोग आपका जिनके जो साथ नाम आप है बैठे हैं ना, ये 100 दफा हजरत मसीह मौद की गुस्ताखी करते हैं, लेकिन फिर भी सारे लोग इनके पास आके बैठते हैं और बात भी करते हैं। मेरी बात सुन ले मैं आपको एक अर्ज कर दूं अभी मेरी आमिर साहब से बात हो रही थी हाँ मैंने आमिर साहब को यही कहा मैं क्या मेरी अम्मी ने मुझे हाथ जोड़ के मना किया हुआ है कि मिर्जा गुलाम अहमद की बात ना करो बाकी जुमात को तुमने जो करना है मैं कभी मिर्जा गुलाम अहमद की बात नहीं तो बड़ी अच्छी नसीहत की है उन्होंने आपको। हाँ मैं नहीं करता क्योंकि मेरी माँ मैं अपनी माँ की इज्जत करता हूँ उन्होंने मुझे सिंपल सी बात की कहते हैं हमारे वो बुजुर्ग हैं तुम्हारा अगर जुमात को समझ नहीं आती तुम्हें समझ नहीं आती तो छोड़ दो कोई ऐसी बात और मैंने इसीलिए छोड़ी हुई है मुझे पहले लोग कहते थे जुमात के क्योंकि मैं
फजल मास्क वाली गली में रहता हूँ, जमात तो कर देता है। मैं कहा बिल्कुल जाके सही है। पूछो अपने प्यो को जाके पूछो, कर देता है कि छड़ी है। जो तो उनको आप खलीफा राबे के दौर तक तो ठीक थे ना आपके ताल्लुकात? मेरे ताल्लुकात आज भी जमात के साथ सही है, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने छोड़ दिया ना, तो मुझे छोड़ दिया जाए बस। आपने अकीदे की वजह से छोड़ी है कि किसी झगड़े की वजह से अल्लाह छोड़ी का है? फजल है, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ मेरा कोई झगड़ा नहीं है, सीधी जड़ी गल है, मेरा नहीं। मेरे जो झगड़े हैं वो मेरे एक से सीने में दफन है बस। हाँ, और उसके बस उस पीछे सीने में ही दफन रखें। पहले हाँ, आप बड़े अच्छे मैं हुआ कभी करते थे, जाहिर नहीं करता, मैं तो कभी अब आप जाहिर नहीं ऐसा ऐसा थोड़ा सा ना खुल रहे हैं, मैं ये वाली बात देख रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं। मेरे जो मे, मैंने आपको शायद कल भी बताया था भाईजान, मेरी अम्मी 2 हफ्ते पहले मिलके आई है मसरूर को, सूर्य को, मसरूर साहब, चलो ऐसे मसरूर नहीं साहब, कहना, ऐसे नहीं कहना मैंने आपको यार। कहा जी मसरूर देखो साहब, मसरूर साहब को मिलके आई। देखें, अब आपने गाली दे ली है ना, अब हो गए हैं साहब बराबर। नहीं नहीं अब नहीं जब नहीं, आप इससे ऊपर गाली मैं देंगे ना, साहब तो नहीं, आपको पता है फिर मैं भी कान टूटा हूँ पूरा। आप होंगे सर जी, आप होंगे, मुझे हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं नहीं, है। वन आप बेशक साहेब, कंटोटे वन हैं, साहेब ना ऐसे करे। आप अब बेशक चलो कंटोटे, एक मैंने मुंह आपको से तो गाली नहीं दी ना, मैंने जुबान मसरूर को स्लिप हो दी है। जाती है। देखो वसीम यार, साहब जब अगर हो इतनी गया बड़ी तो जगह गाली दे दी, नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैंने जुबान स्लिप आपको हो और नहीं गई तुम है क्या तो रह उसको मैंने गए? आप आपको नहीं किस दी, तरह से? आपने कल मेरे साथ बदतमीजी की थी। बस जाने हाँ, तो यार, आपकी अच्छा, बदतमीजी हो जाती है और आपने नहीं हजरत नहीं नहीं मसरूर नहीं अहमद नहीं को नहीं इतनी नहीं, बड़ी बात नहीं मसरूर कह जो दी। है, मसरूर जो है एक पब्लिक फिगर है, उसको मैं कुछ भी कह सकता हूँ। हाँ, आप ये मुझे कहते, कहीं आपको इजाजत मैंने नहीं कहा है है कुछ भाई बुरा, कि पब्लिक फिगर को गाली दे दो आप। दे सकता हूँ, मेरा राइट है। कोई किसी का राइट नहीं किसी को पूरी दुनिया में गाली देने का। तो ले जाओ कोर्ट में भाई, फिरौन को भी गाली देने ले का जाओ राइट कोर्ट किसी में, के पास नहीं है। मैं तो कहता हूँ कोर्ट में ले जाओ। कोर्ट में ले जाके क्या करना है यार? अब हाँ, हम तो ऐसे दफ्तर थोड़ी है। बुला के बात कर लो, जैसे अभी आपका भाई आया था अहमदी भाई। हाँ, मैंने कहा भाई बुला लो दफ्तर अपने, अगर इतनी तुम्हें शिद्दत है कि तुम्हें प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ तो जब आएंगे ना तो पता चल जाएगा। इतना तो बात मैंने, ये मेरी भी बात उम्र, ये मैंने भी अपनी जिंदगी में, मैंने भी अपनी हाँ, जिंदगी में जमात को बड़ी नजदीकियों से देखा है, ऐसी सारों ने ही देखा होता है, सारे यही हाँ। समझ रहे होते हैं, अब तो सब अल्लाह का यही फजल है, समझते हैं। हम खामोशी से, मैं तो साइड से हो गया भाई। एनीवे वाटर साहब, आप खुश रहें, आप अपना करें जो बात करनी। सर, पता मैं क्या, आपको खुश रहने के लिए ही कहता हूँ, मैं तो आप खुश इन हूँ, चक्करों में मैं ना तो पड़े। खुश हूँ, हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ भाई जी। मेरे को ते मनु टेंशन नहीं है अपनी, अल्लाह का बड़ा करम। चले कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता आपका नाम नहीं पता, आपकी आइडेंटिटी नहीं पता, और इस चीज नहीं, पे मैं इन चीजों पे ना बात नहीं करता। मैंने तो अपनी, मुझे ये आप सब ने कहा वसीम साहब कार्टून की फोटो उतारो, अपनी फोटो लगा दो। मैंने कहा यार देख लो मेरी फोटो अगर देखनी है तो मैं अपनी बस फोटो। वसीम भाई, आप बड़े अच्छे आदमी हैं। एक तो आप ना थोड़े से ना, आपके फैमिली में अभी एक इंसिडेंट हुआ है, वक्त ने अपने आप को ना हील होने का। भाई दूसरे नंबर हमारी पर ना, फैमिली में, हमारी फैमिली में सब सही है, हमें कोई, मेरा भाई, नहीं, आपके भाई की हाँ वफात वो हुई है उसने ना, जाना तो था, ये उसने तो यार, उसने तो जाना था, बात पता है क्या है? हाँ भाई की अगर आपने बात की है मैं कर लेता हूँ, उसने जाना था डॉक्टर ने, मगर वो बड़ी अच्छे तरीके से किया है। मैं अपनी जी फैमिली को सबको ये कहता हूँ, क्योंकि उसकी ना रोज बरोज ताकत खत्म होती, वीक होता जा रहा था। जाने से पहले, जी, एक दिन पहले उसने मुझे फोन किया, कहता है मुझे शवरमा ला दोगे लंदन से? मैंने कहा ले आऊंगा। हाँ, कहता है जैतून भी चाहिए मुझे। मैंने कहा बहन मुझे 2 घंटे लगेंगे। कहता है ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा, हमने साथ में बैठ के खाना खाया रात को 7 बजे, जी, उसने 1.5 शवरमा खाया। आप खुद सोचो, अब ये इंसानियत की बात हो रही है, ठीक है, ये जमात का ताल्लुक नहीं है इससे कोई। जी, 1.5 शवरमा खाया है, जैतून खाए हैं, हुम्मस खाए हैं। तो 7 बजे मैं लेके पहुंचा हूँ, मैंने कहा मैं जाता हूँ 8 बजे। कहता है यार आधा घंटा बैठो। तो मेरी भाभी को कहता है, मतलब मेरी कजन ही है, तो मैं तो बाजी बुलाता हूँ, तो जी, उसको अपनी वाइफ को कहता है कि चाय तो बना दो। भाभी ने कहा, मतलब मेरी भाभी भाभी हम तो बाजी कहते हैं ना, तो उसने कहा किन्ना खाओगे? और हाँ, क्योंकि उसको वो बैग लगा हुआ था ना पॉटी वाला, तो और किन्ना खाओगे तुसी? कहता नहीं खा लेने आधा कप पी लांगा मैं। तो 8:30 जी, बजे मुझे गाड़ी तक छोड़ने आया बाहर, गाड़ी तक चलता फिरता था, ये नहीं कि उसको कोई वीकनेस थी, नहीं। उसका आसान उर्दू में मैं बात बताऊं, उसका अंदर से जिस्म गल गया हुआ था कैंसर की वजह से। जी, जी, अगर आप, मैं ये समझ सकता हूँ। मैं भाई आपको पता है क्या बताता हूँ, मैं सिर्फ आपको ये वाली रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी आप अंदर से ना, बंदे के घर में ऐसा वाकया हुआ हो तो वो घबराया हुआ होता है,
तो अपने आप को 15-20 दिन, 1 महीना देते हैं, तो फिर आपकी एनर्जी दोबारा वापस उस लेवल पे मैं आ अभी जाती है। अभी भाभी की तरफ से मतलब अपनी बाजी की तरफ से ही होके आया, मतलब मेरी जी, कजन है तो जी, हम तो जी, बचपन जी। से उनको बाजी बाजी कहते थे। जी, तो तो मैं आपको ये पता है हाँ, तो रिक्वेस्ट वो ये करना तो चाहता हूँ जाने वाला कि ये चला हमारे गया। तो मुझे जी, सुबह फोन आया भाभी का, वसीम भाई भाईजान चला गया है। मैंने कहा भाईजान, ये भाईजान फौत हो गया। मैंने कहा, मैं तो उसी वक्त बैठ गया। मुझे जब हाँ, उसका मेरी भाभी का फोन आया ना बाजी का, मेरे दिल में 1 सेकंड के लिए शक है। मैंने कहा अल्लाह खैर ही करे। जी, हाँ, क्योंकि वो इस टाइम पे मुझे फोन नहीं करती होती सुबह 9 बजे, वो करती होती है तो 12-1 बजे के करीब करती होती है। हाँ, तो मुझे एक जी, सेकंड और वही हुआ बस। चले सब यहाँ पे थे, अम्मी भी आई हुई थी, मेरी खाला भी कनाडा से आई हुई थी, जी, सब लोग, मेरी फैमिली कनाडा में भी होती है तो वो भी सारी यहीं पे आए हुए थे। जी, बस जाने वाला जी, चला गया यार, चला गया, क्या जी, कहेंगे। जी भाई, मैं आपको पता है ये वाली बात कहना चाहता हूँ कि हमारे भी जो गैर अहमदी दोस्त होते हैं ना, इनका थोड़ा सा जो है ना जमात के स्ट्रक्चर के बारे में और खलीफा के बारे में ना इल्म थोड़ा कम होता है। तो ये एक समझते हैं कि ये कोई ऐसे ही कोई चौधरी टाइप भाई मुझे नहीं आपकी, है, देखें मैं आपको एक बात बताऊं। काउंसलर टाइप लीडर है, नहीं नहीं नहीं, या मुझे कोई आपकी जमात बड़ा से कोई ना, मुँह सा आदमी है। वाटर तो साहब, इनको वाटर साहब अंदाजा नहीं जमात की होता बात ना कि करें। आप खलीफा जमात की बात वक़्त ना जो है करें। ना उसकी मैं एक बड़ी जमात, पोजीशन है। नहीं वो उनकी जितनी भी मैं जमात में हाँ, ना इंटरेस्टेड नहीं और ना इनकी बातों में। हाँ, किसी ने अगर मुझसे डायलॉग करना नहीं है मैं जमात के आपको बारे में, अपने दफ्तर बुलाओ तो बात करते हैं। जी, किसी को प्रूफ चाहिए तो दफ्तर बुलाओ। जी, जी। हाँ, इससे ज्यादा मैं जमात के वो बारे में सारे ना बात नहीं प्रूफ और करना चाहता। हाँ, वो आप ये बात ना ही करें। और हाँ दूसरी बात ये है कि हम जिन लोगों को भी लेके गए ना कभी, हमारे बुजुर्गों ने हजूर से मिलवाया, तो बाद में इन लोगों के मुंह में कोई अल्फाज रह नहीं जाते बाकी। नहीं, मतलब ऐसी बात नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है। शानदार वो लोग, पर्सनैलिटीज जो वो होती है लोग ना, जो है ना, इन्होंने अपनी जिंदगी में देखी भी नहीं होती। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है खास तौर कि पे ऐसी खलीफा ऐसी राबे बात नहीं और है कि खलीफा आपने, खालिद से। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल हाँ, नहीं है। वाटर साहब, मैं जी, आपने इस टॉपिक पे बात नहीं करना। आप जिनको लेके गए होंगे ना, हाँ, जी, उन्होंने ठीक है, उन्होंने आपके खलीफा के ना, हाँ, क्या मैं कहना नहीं चाहता, उन्होंने आपके खलीफा की कुछ जो चीजें नहीं उनको पता होंगी ना, मैं आराम से बता देता हूँ आपको, मतलब कि इज्जत आप से। हाँ, आप अपने मगर पास वो वाली चीजें रख लें। आप बड़ी मेहरबानी करें। और कब लेके बात जा पता रहे है हैं, कि कब लेके जा हाँ, रहे हैं, ये बताएं कब लेके जा रहे हैं। हाँ, बात मैं ये है। आपको मैं आपको ना ज्यादा दूर नहीं लेके जाऊंगा। हाँ, जी, 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 मेरे साथ आप अपने अमीर साहब के दफ्तर चले जाएं, वो मुझे मिलने, वो मुझे जानते हैं, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। जी, जी, जी। ये नहीं कि वो मुझे जानते नहीं है, तो बड़े अमीर साहब सालों से से हम जानते मिल हैं। के क्या करेंगे? हम मिल के उनसे क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे ना, वो जवाब देना उन चीजों का। अच्छा, मैं आपको और एक कोई बात गंदे बताता हूँ सवाल कि नहीं है, मैंने उनको कोई गालियां नहीं निकालनी है। मैंने उनसे जी, कहना कि ये चीजें हुई थी, इनका जवाब दे दें, जी, बस, और जी, कुछ नहीं। ये जवाब दे, ये लंदन के किस्से हैं। हाँ, बंदे भी ठीक है, जिंदा हैं। हाँ, जवाब दें। ठीक है। जवाब तो नहीं ये देना तो 2 दिन ले लें, 3 दिन ले लें। चलो, ये हाँ अगले बंदे की हाँ, मर्जी पे ये जो होती है, काम, ये जो बात होती अगले है, बंदे की ये मर्जी बात पे होती है काम कि हो जब गया। अमीर जमात जो चीज आप दिखाते हैं ना लोगों को, हाँ, जो चीज आप दिखाते हैं उसके ऊपर अमल भी होना जरूरी होता है। आपका खलीफा ही ये कहता है, मिर्जा मसरूर, मैं बड़ी इज्जत से बात करूंगा आपसे, मिर्जा मसरूर क्या कहता है सदर जमात को, कि जी सदर जमात कहता है हजूर को कि सदर साहब, जब हम पैसे चंदे के लिए फोन करते हैं तो वो फोन नहीं उठाते। तो आपके खलीफा साहब ने यही कहा है ना कि चंदे के लिए क्यों फोन करते हो, वैसे भी तो हाल पूछने के लिए फोन किया करो ना। जी, कहते हैं कि जी, नहीं कहते, कहते हैं कि बड़ी नहीं। अच्छी बात है ये, हाँ अच्छी बात है। हाँ, तो हाँ, सिर्फ चंदे के लिए अगर आपने लोगों को फोन करना है तो बदनामी आप लोग खुद अपने खलीफा की करवाते हो ना। जी, जी, जी। मैं आपसे कोई लड़ाई नहीं कर रहा, ये सिंपल सा टॉपिक मैंने बड़ा प्यार मोहब्बत का टॉपिक आपके लिए रखा है। पता है, मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूँ हाँ, कि तो ना, उसका गुस्सा किस पे उतरता है लोगों का फिर। आपको सारी बात बता रहा हूँ कि जो आप बदतरीन भी जमात अहमदिया के हालात बताए ना, हाँ तो ये हाँ, बाकी सब लोगों से और पाकिस्तान की बहुत सारी अक्सरियत से बेतहाशा अच्छा ये हालात है। चले अच्छी बात, आप खुश रहें बहन, ठीक है। आप खुश रहें, आप खुश रहें। अल्लाह आपको, हाँ, तो मुझे तो खुशी होगी, ये मुझे लोग तो जो है ना, खुशी ये होगी। बिल्कुल नहीं, जैसे ये अली वाला भाई कह रहे थे ना, असि ये सवाल पूछांगे वो पूछांगे। नहीं नहीं नहीं, और भाईजान उन मीटिंग्स के डेकोरम होते हैं बस सर वहां जी, पे। डेकोरम सब कोई होते हैं, हमें भी पता है कोई डेकोरम सब, देखें। बातचीत करने का तरीका होता है उन महफिलों में। हाँ हाँ, वो बड़े पढ़े इसीलिए तो मैं लिखे कहता और बड़ी हूँ, पोजीशन इसीलिए वाले तो बंदे आपको मैं हैं। कहता हूँ अगर मैं अपना डेकोरम अगर कायम रखना है ना, जी, हाँ, तो लोगों के जी, सामने बैठ के जवाब देने चाहिए ना। आप जी, बुलाएं अमीर साहब को, और जिनकी शिकायतें हैं, जिन लोगों की शिकायतें हैं, उनको भी बुलाएं।
हाँ बिल्कुल सही। और वो मुनाजरा शुरू हो गए थे। आपके पास चलो आपने कोई आज नहीं, तक कोई नहीं, वो आपने मैं कभी आपको कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा वक्त वाटर दें अपने आप को। ओके खलीफा मैं ਸਾਹਿਬ आमिर ਤੁਹਾਡੇ साहब ਖਲੀਫਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤਨੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਕੋਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। जी अली वाला साहब, आप जब मेरे साथ बैठेंगे ना, या मैं कभी लंदन आया, उस साइड पे आया, तो मैं आपको वो सारी जगह दिखाऊंगा। आपको उन जगहों और उन दफ्तरों में से गुजरते हुए ही पता लग जाएगा कि बंदों का लेवल क्या है और उनसे आपको कैसे बात करनी होगी। पहले तो आप ये बिल्कुल, आपको ये जो एक वाटर साहब सा- एक मैं एक आपको बात बता खास आपको दूं तरीका आपको मैं बातचीत का, प्लस आपके लिबास का, प्लस आपको अपना सवाल अगर कोई होएगा प्रेजेंट करने का, बिल्कुल एक डिफरेंट तरीका होता है। जैसे आप किसी हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करते हो ना, जैसे बड़ी कंपनियां आपस में बात करती हैं, तो आप उस तरह बात करेंगे। ये इस तरह नहीं होएगा कि मैं पूछना आया सवाल, ओ मेरा जवाब दो, जवाब ना आया तो तुम झूठे, वाटर ऐसे नहीं साहब होता। वाटर साहब वाटर साहब। वाटर साहब एक मिनट ऐसा कुछ नहीं होता, कोई ऐसी बात नहीं है। सब हाँ। ऑर्गेनाइजेशंस में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। अच्छे और बुरे एक और चीज होती है, बातचीत के तरीके फर्क होते हैं। अच्छा फौज एक का मिनट बात एक का मिनट तरीका एक और है, मिनट डॉक्टरों एक की मिनट बात का एक तरीका मिनट और है। एक मिनट ठीक है। आपकी जमात बहुत अच्छी है, आपको मुबारक हो, कोई ऐसी बात नहीं। आप जब कभी लंदन आएंगे ना जी तो मुझे जरूर मिलिएगा। कोई ऐसी आप दफ्तर में जाके पूछ लें, वहां पे पूछ लें क्या कहते हैं, जियाफत में पूछ लें जहाँ पे रोटियां पकती हैं, जियाफत साउथफील्ड की जियाफत में पूछ लें। कोई मसला ही नहीं, हमारे अहमदियों के लिए हमें बंदा ढूंढना मसला ही नहीं होता। हाँ तो मुझे बुला लो मैं भाई जी, फिर अगर हाँ, बंदा मैं लगा आपको वहाँ पे बैतुल फजल लंदन आके मिल लूंगा यार, वो तो मेरी कोई फेवरेट ऐसी बात नहीं है, मैं आपको सब चीजें बैतुल आप फतू मुझे में ये मिल बता लूंगा। दें। ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ बुजदिल ने ਮੌਜੂਦ आखिर ਹੋ मैंने ਯਾर, चुप ਗੱਲ ही लिया। ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ कौन ਮੌਜੂਦ ਹੋ? आया थल्ले? मैं मौजूद हाँ। एक मिनट ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, तो एक प्रोग्राम करना होता है। अच्छा वसीम साहब, मैंने आपसे ये जो तुम पूछना था, करोगे मैं आ जी, जाऊंगा। ये जो अस्सलाम लफंगा वालेकुम। कोता कोई- साला है महमूद शाह, यार इसका उन्होंने जवाब दे फेवरेट लेने खलीफा एक एक आइंदा मिनट का वो कौन? चौहान साहब रुक जाओ। बुजुर्ग हैं, चौहान साहब साहब, बुजुर्ग एक मिनट हैं, रुक इनको जाओ। बात करना है। बुजुर्ग हैं हमारे, मतलब साहब, सबके बुजुर्ग हैं, उम्र में हमसे सीनियर हैं, तो इनको बात करने हैं। अली वाला भाई ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। जी ठीक, बड़ी मेहरबानी अमर भाई। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਜਮਾਤ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਸ਼ਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ बेशक ਤੇ जिन्हों ਉਹ मर्जी ਉਹ तो ਜਿਹੜਾ वाटर साहब आप कनाडा में कहाँ पे होते हैं बाय द वे? जो वसीम साहब मैंने मेरा मैंने ये बंदे सवाल बंदे था को साथ जो है ना पंगा लिया हुआ है, कि महमूद इसलिए मैं अपनी शाह का लोकेशन जो नहीं बताता। फेवरेट मुझे आप है, वैसे बता दें, टोरंटो में होते हैं, मेरी बहुत बड़ी फैमिली मिर्जा- टोरंटो में है। तो महमूद इसीलिए शाह तो का नहीं फेवरेट बताता, कौन है मुझे खलीफा बात के जो बंदों आइंदा से ज्यादा बनेगा? परेशानी होती है। यार एक एक करके बोलो यार, एक एक करके चौहान साहब बोलो एक यार। मिनट, चौहान साहब एक बोलने मिनट तो दे दियो। दो, चौहान साहब एक मिनट दे दो, चौहान साहब एक मिनट दे दो। वाटर साहब आप टोरंटो में होते हैं? जी मैं टोरंटो के आसपास ही होता हूँ, लेकिन मैं किसी को बताता नहीं हूँ, बराए मेहरबानी ना ही मेरे से नहीं बारे नहीं में नहीं, अच्छा चलें, मैं नहीं पूछता, नहीं एक जमात अहमदिया को बड़ी बीमारी है, या खुरा लबने हर बंदे का निकल पड़ते हैं, तो बराए मेहरबानी नहीं, मैं आपने नहीं मेरे पूछता, से मैं नहीं बात पूछता। करनी हो ऐसे ही कर लिया करें, मैं सारी बातें साफ साफ ही करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई मैंने वैसे मैंने आपको बताया मेरी बहुत बड़ी वाटर साहब से उनकी जिन्स भी ना पूछें, ये वो नहीं बताते नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, चौहान साहब रहने दो, रहने दो। चौहान साहब वाकई ना पूछना, क्योंकि मैं जिन्नात ही चुहा। जी चौहान साहब पूछो कि अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है चौहान साहब? बड़ा अरसा हो गया गल नहीं हुई। मैं ठीक ठाक हूँ। मैंने आपसे ये सवाल पूछना था, मेरे पीछे बच्चे रो रहे हैं, वो मेरे नहीं है बहरहाल, वो अकबर खान साहब देते नहीं ने? हाँ, लफंगा ਤੁਹਾਡੇ खोते ਸਮਝਦੇ साला ਨੇ। का फेवरेट खलीफा कौन है? किसका? महमूद शाह का। भाई महमूद शाह का कोई अपना वो जो है ना, नहीं, आइंदा के लिए मेरा मतलब है, फेवरेट कैंडिडेट। मैं आपको बता देता हूँ, मुझे उसका नाम अभी जहन में नहीं आ रहा। जो मिर्जा मसरूर के साथ हमेशा एक बंदा बैठा होता है प्रेस रिलीज का, पतला सा है, वो है, वो मिर्जा खानदान से है। मिर्जा खानदान से है। ये मतलब 40 की एज के अंदर है, 40-45 के ब्रैकेट के अंदर है। जो फोटोओं का और जो हजूर बोल रहे होते हैं, मिर्जा मसरूर साहब बोल रहे होते हैं, वो लिख रहा होता है अपने हाथ से, पतला सा, अच्छा अच्छा। वो है।
भैया ये आपका चौहान नाम साहब, नाम जेन में नहीं है आपके। मैं आपको मुझे कोई एमपी का कोई वीडियो खोल के देखना पड़ेगा, उसका नाम आ जाएगा। हाँ, वो किस खानदान से उसका ताल्लुक है, यानी वो मिर्जा खानदान में से किस नहीं, धड़े से? मिर्जा नासिर के खानदान से। अच्छा अच्छा। और लुकमान का वो मतलब है रिश्तेदार? लुकमान का रिश्तेदार है, बिल्कुल। अच्छा अच्छा। भाईजान एक गल याद रखना चौहान साहब, मैंने आपको एक दफा प्राइवेट में भी ये बात कही थी, आज मैं इसके ऊपर भी टिकटॉक पे भी कह देता हूँ। मुझे तो इनसे कोई ऐसी मतलब प्रॉब्लम नहीं है। खलीफा वही बनेगा जिसकी उम्र 50 मैक्सिमम 60 की होगी, 60 को भी टच नहीं करेगा वो, 57 तक का होगा तो वो बनेगा। मतलब कि 45 से लेके या 50 से लेके ताकि अगले 25 साल वो जमात को कंट्रोल कर सके, क्योंकि जमात अहमदिया रोज बरोज इनके हाथों से निकलती जा रही है, मुरब्बियों के हाथों में जाती जा रही है। चौहान साहब आपकी भी 57 ही है, चौहान साहब करें कोशिश। क्योंकि बुढ़े आदमी को मतलब मैं गलत जुबानी में बात, गंदी बात नहीं कर रहा, 60 प्लस के बंदे को उन्होंने कभी नहीं बनाना खलीफा। उसको अच्छा। बनाना है जिसके पास मिर्जा मसरूर के सारे इंफॉर्मेशंस हो, और उसको थोड़ा टाइम देना है, 5 साल 10 साल, ताकि वो निजाम को समझ सके। जिस हाँ, तरह मिर्जा मसरूर को भी 10 साल टाइम दिया गया था। जिस तरह आजकल नाम आता है मिर्जा इनाम का। मिर्जा इनाम कौन है? अगर आप आज से 20 साल पीछे चले जाएं, हाँ, ये वाटर साहब इधर बैठे हैं, मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, कोई बदतमीजी, हाँ, उसको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पूछे। एक मिनट आमिर साहब, एक मिनट, उसको डायरेक्ट यूके की जमात का प्रिंसिपल कैसे बना दिया गया? क्या वो किसी जामिया से पढ़ के निकला? ये सिंपल से क्वेश्चन है। वो खानदान से होना ही काफी है। अब मिर्जा मसरूर के पास पनामा कौन सी लीग काबिलियत में है? 18 साल है, ठीक है के अलावा कोई काबिलियत नहीं, लेकिन वो खलीफा आज बना हुआ से है। 18 या 20 साल पहले पनामा लीग में 2 लोगों का नाम आया था, मिर्जा मसरूर का और मिर्जा इनाम का। जिस दिन उसका नाम आया था, उसके दूसरे दिन वो फ्लाइट में लंदन में आके उसने असाइलम किया था, और उसके हफ्ता महीने के बाद या 2 महीने के बाद उसको जामिया अहमदिया यूके का प्रिंसिपल की गद्दी दी गई। देखें, ये अकरबा परवरी की बदतरीन मिसाल अगर है। मैं गलत कह रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, ये नहीं, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। हाँ, नहीं, मैं इनसे, अगर कोई भी अहमदी कहता है मैं गलत कह रहा हूँ, तो भाई मुझे बताओ पहले मिर्जा इनाम अहमद क्या करता था? क्या उसने किसी जामिया से डिग्री लेके जो भाई मिर्जाई तो कहेंगे, जो भी आप कह रहे हैं वो झूठ है, तो मिर्जाइयों का क्या वो? भाई अब देखें, मैं 70 साल मेरी उम्र है, मिर्जाइयत में मैंने सारी उम्र गुजारी। वो मिर्जाई मुझे कहते हैं, चौहान साहब आपको क्या पता? मैं क्या, वाह ओए, सदके हो ਤੁਹਾਡੇ। क्योंकि एक चीज याद रखें आप, एक चीज याद रखें, एक चीज याद रखें, जी जी। मिर्जा लुकमान इज नॉट हैप्पी कि उसके साथ हुआ क्या है। हाँ, उसकी जिंदगी में, उसका बढ़ापे में उसके साथ जो जलालत की गई है, ठीक है, बेशक उसकी बेटी ने की है, किसी ने भी की है। किसकी बात कर रहे हैं, किसकी? मिर्जा लुकमान की। मिर्जा लुकमान की, उसके साथ ज्यादती की गई, जो उसने ज्यादतियां की हैं अब तक लफंटर पने से, वो क्या, उसका क्या? निदा क्यों चीखी है, मैं आपको आज बता देता हूं। मैंने पहले भी कई लोगों को टेलीफोन पे प्राइवेटली बताया हुआ है। जब एक कहीं से पैसा फ्री में मिलना शुरू हो जाए ना, हाँ, ट्रैवलिंग फ्री, वीआईपी गाड़ियां आगे, सब कुछ, और उसके बाद उसको साइड पे कर दिया जाए, दूसरी परियां पकड़ ली जाएं, तो तकलीफ होती है ना पुरानी परी को फिर। हाँ, ये तो बहुत तकलीफ दे है। हाँ, तो इसने वो ऑडियो रिकॉर्ड करवाई थी इसलिए कि मैं शैंडी, इसको क्या कहते हैं, ये जो है वो पाकिस्तान वाला, मेरे दिमाग से नाम निकल जाता है, महमूद शाह को ब्लैकमेल करने के लिए। महमूद शाह ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, ये कहानी ना यहीं पे बंद कर दें। ये कहानी पाकिस्तान के हर घर में होती है, हर जिम्मेदार के घर में होती है, हर अमीर आदमी के घर में होती है। चलो, अगर सबूत लेने हैं तो मैं आपको सबूत क्या, आपको उन कहानियों के अंदर एंटर करवा देता हूं। वाटर साहब कह रहे हैं हम भी उतने खबीस हैं जितने जिम्मेदार होते हैं, ये इनका कहना। तो जनाब अली कोई अपनी जबान को ख्याल रखे, नहीं तो किताबें खुल गई ना तो हर पासे इतने को पन्ने बिखरेंगे। खोलो जी, खोलो किताबां, सानू किसे किताबां दा डर नहीं है। वाटर साहब किताब खोलो प्लीज, किताबां खोलो, धोतियां खोलो, सानू कोई डर नहीं। और सर जी, हम तो गुड्डी उड़ाने के लिए बसंत पे जब 1 साल बाद छतों में चढ़ा करते थे ना, हाँ तो जी, सारे 500 घरों की वारदात जो होती थी वो सामने पड़ी होती थी। हाँ जी, तो आप अब बड़ा एंजॉय करते थे, वो बातें। घरों में झांकते रहते थे। हमने तो आज ये तक नहीं झांका गुड्डी उड़ाने के बहाने।
ये सारे पाकिस्तान के मुआशरे का यही हाल है, और पूछो ही ना कोई हाल, चुप कर जाओ बस। और नहीं, हम दूसरे क्यों की चुप चादर करें भाई? उठाओगे तो जिन्होंने अपने बल्ले को गंद खुद ही खिलारे रहना है। हुए हैं वो चुप करें, निदा चुप अपना करे, लुकमान चुप यार करे, चौहान मिर्जा साहब, एक तो मसरूर ਤੁਸੀਂ चुप ਆਪਣੇ करे, ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ हम ਕੁਝ क्यों ਵੀ चुप ਨਹੀਂ करें? ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਤੇ चौहान ਸਾਰਾ साहब ਤੁਹਾਡੇ हम ਨਾਲ क्यों ਹੈ। चुप करें? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ मिर्जा ਦੱਸਣਾ मसरूर कभी चुप जिंदगी करे, enjoy जमाते ही नहीं अहमदिया दी की। नई खबर जिसके दसा जिसके नाक के नीचे जना हो रहा है वो कहता है तुमने खुद पेश किया था, सर वो मुझे चुप करे। इजाजत, आई हैव सो मेनी थिंग्स टू लूज। वाटर साहब आप आप लोग जाओ, जो हैं आप वो जाओ, सब वाटर कुछ साहब आप लॉस्ट जाओ। कर चुके आप हुए चुप ही हैं। रहे वाटर साहब, आपको जज़ाकल्लाह आपके। एक्सप्लेनेशन कॉल हो जानी है, चौहान साहब खलीफा जी चौहान ने साहब आपको मैं बुला तुहानू लेना है। दसां, सर मैं आप दोनों तो निकल चुके हैं ना, ना घर है ना ठिकाना, हमारे पास तो है ना कुछ, हम क्यों जाया करें अपने अल्हम्दुलिल्लाह वक्त को? हमारे पास ठिकाना है, हम मिर्जाई खिलाफती दजल को हमने छोड़ा है, जो एक गलाजत का ढेर है, यार साहब, जैसा निदा ने आप बताया। इतने उम्र एना दी रसीद स्टोरी हैं, अपना दसना वा ख्याल किया अपनी करें। माँ बहनों के साथ जना कर रहे हैं ये अच्छा, है ये इनका प्लेटफॉर्म ऐसी बातों का खलीफा ऑफ नहीं, मैं इस्लाम। स्वीडन आके आपको मिलूंगा। आप जब भी कभी आए मुझे आके जरूर मिलें, कोई ऐसी बात नहीं, आप जरूर आए। चौहान साहब एक जी कनाडा जी ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਪੀਸ ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, अच्छा ਠੀਕ ਹੈ, हाँ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ हाँ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। हाँ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ आपके होंठ बड़े प्यारे हैं, आप मुझे अपनी एक फोटो व्हाट्सएप कर दें। अच्छा हाँ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਲੰਡਨ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ, हाँ ਲੰਡਨ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਆਪਣਾ अकबर खान ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਾਜੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜੀ, ਡੈਲਿਸ ਜੀ। ਨਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ WhatsApp ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਏ ਤੁਸੀਂ? मैं मजाक नहीं कर रहा, पूछ लेना अकबर खान साहब ने। नहीं नहीं, असल गल है कि जो आपने कॉन्फिडेंशियल बातें बताई हैं मुझे भी बताई, वो तो नहीं हम बताते, वो आप खुद बताएं तो आपकी मर्जी है, लेकिन जाहिर है हम तो नहीं वो महमूद बताते। शाह दे कोल ऑप्शन कोई नहीं सी, क्योंकि उन्हें क्या कि मैं ए गल महमूद शाह ने क्या मेरे कोल ए जो तू रिकॉर्डिंग दित्ती है ना, तू हाँ। जो करना है कर ले, मैं तेनू कोई पैसे नहीं दे जा। हाँ हाँ, तू जो करना है कर ले। महमूद शाह ने कहा ए ऑडियो मैं खुद लीक करांगा, हाँ। ऑडियो मैं खुद लीक करांगा हुन। हाँ। हाँ, ते मैं हाँ। देखना कि तुसी लोग मेरा पत्ता किस तरह कट दे। हाँ वह तो गल सही है, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਮਸਰੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਮਸਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਸਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮਸਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਰੋਕੋ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। हाँ बिल्कुल। ਇਹ ਗੇਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ। और वो इस बात में महमूद शाह बिल्कुल ठीक है। मसरूर तो जाके लंदन में बैठ गया आराम से अंग्रेजों की गोद में, भाई वहाँ पे तो इतना मुश्किल है सरवाइव करना, तो वो उसकी सही बात है कि वो पूरा थाना खरीदना पड़ता है, और फिर भाईजान- थाना नहीं, थाने के बड़े भी खरीदने पड़ते हैं साथ, ऐसे ही नहीं वहाँ पे वो सरवाइव कर रहे। तो ये बिल्कुल। इसलिए कहता है कि ऑडिट मेरा ना करे भाई, वरना मैं आपका भी सारा कुछ खोल के रख दूंगा। ऑडिट के लिए बंदा जाता था, मिर्जा मसरूर का दामाद, बेटी का हाँ। हस्बैंड, वो कहता हाँ। था भाई इनको मैं हर चीज क्या बताऊं पेपरों हाँ। में, पेपरों में कुछ चीजें नहीं होती हैं। हाँ हाँ, और ये बिल्कुल। फिर शक करते हैं मेरे पे, और ये पूरी पूरी जमात को बताते हैं कि ये यहाँ पे कुछ भी नहीं निकला अंदर से। हाँ वो कहता है इन चीजों का फिक्र करने की नहीं है, यहाँ पे हाँ। कोई कत्ल नहीं होता, यहाँ पे कोई किसी को तंग नहीं करता। हाँ, मैंने बिल्कुल। अभी एक बात बताई है इनको कि मुझे हाँ। बताओ कि किस टाइम पे बिजली जाती है रबवा की, बताओ। हाँ बिल्कुल। कितने जनरेटर लगाए हुए हैं आपने, ये भाई दिखाओ आप मुझे। ये सोचें, रबवा के स्टेशन जो थाना है उसमें अपॉइंटमेंट लेने के लिए करोड़ों की रिश्वत देनी पड़ती है, इतना माल वहां से खाया जाता है, सोचें जरा। हाँ, मुझे आप ये बता दें कि जमात के पास कितने जनरेटर हैं रबवा के अंदर हाँ दफ्तरों के लिए। मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा, मैं आम जी, आदमी जी। की बात नहीं। दफ्तर जमात निजाम जमात चलाने के लिए जो जमात के दफ्तर हैं, कितने जनरेटर हैं? हाँ बिल्कुल, कोई भी हाँ। नहीं होता। हाँ, क्योंकि बिजली जाती नहीं है, क्योंकि ये पैसे हाँ। देते हैं वहां पे। हाँ बिल्कुल। बात पता क्या है चौहान साहब, छड्डो करन दो जो कर देने करन दो, साडा हाँ, की जांदा तो नहीं है। नहीं गेम रह गई है।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਧੋਤੀ खोल के रख दी है ਇਹਨਾਂ ਦੀ। मैं वरना ऐसे तो ही ना करम दियो सासी की करने भाई। मैं तो इनको कहता हूँ मिर्जा साहब का नाम लेना छोड़ दें, तो खुल के याशियां करें, आपको कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन ये दजल छोड़ दें। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आज भी कह के जाऊंगा, मरज़इयों में अगर हिम्मत और जुर्रत है ना, आज तो दुआवां स्टार्ट कर दियो। जिस दिन मिर्जा मसरूर मरेगा ना, ते ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨ ਜਾਂ ਰੱਵਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਫਨਾਇਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ नहीं ਦੁਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ मिर्जा ਕਰ ਦਿਓ। मसरूर ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਆਨਾ ਵਾਲੇ ਤਾਬੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਾਨਤਨ, ਅਮਾਨਤ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਸੜਨਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਮਰੇਗਾ, ਉਹਨੇ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਜਾਨ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਇਹ ਬਦਨਸੀਬ ਖਲੀਫੇ ਨੇ, ਬਦਨਸੀਬ ਖਲੀਫੇ। ਹਾਂ हाँ लोगों ਨੂੰ जो कहते ने ना कि जी बेहश्ती मकबरा में टेम्परेरी यहाँ पे दफनाया है, हाँ हाँ ले जाओ मिर्जा ताहिर ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਲੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ। हाँ 25 साल हो गए, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। हाँ हाँ अब देखें मिर्जा ताहिर के वक्त इन्होंने हर कितने हर अपने सारे इख्तियारात जो हैं वो लगाए, लेकिन नहीं जा सका वो फिर भी। हाँ मतलब 25 साल हो गए ਉਹ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਦਿਖਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੋਰਿਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਕੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇਮਾਨਤਨ ਦਫਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜ਼ਰਾ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾ ਦਈਏ। हाँ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ हाँ और बदनसीबी देखो, नॉर्मल कब्रिस्तान खत्म हो गए सी लंदन दे अंदर। हाँ उत्थे दफनांदे। और फिर है कि वो मिर्जा ताहिर ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਰ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ बिल्कुल ਨਾਲ बिल्कुल ਸੁੱਟਵਾਇਆ। बिल्कुल ਬੜਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਲੀ ਪਲੇਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, भाईजान ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ। अगर निजाम जमात इन्ना चंगा हुंदा ना इन्हां दा, जिस दिन इन्हां ने मिर्जा ताहिर दी वाइफ ਨੂੰ, मैं बड़ी इज्जत दे नाल गल कर रहा क्योंकि जो चला जाए ਉਹਦੀ इज्जत दे नाल जी गल जी करनी। जिस दिन इन्हां ने मिर्जा ताहिर दी वाइफ ਦੀ ਕਬਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ हाँ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, अपडेट ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਸਾਡਾ नहीं ਨਿਜ਼ਾਮ भाई, ਜਮਾत वो ऐसा। अहमदियों को तो वो कीड़े मकोड़े समझते हैं, अपडेट बिल्कुल उन्होंने क्यों दें, उन्होंने की बिल्कुल जरूरत है। बिल्कुल। हाँ हाँ मतलब ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। भाई इंसान लाश की भी बेइज्जती करने वाली बात है, उठा उठा के उसको लेके फिरना इधर उधर, जो ये हरकतें करते हैं जहां खामखा। पे एक अपनी इंसान को तरफ से दफना बड़ा दिया वो आपने, तीर जहां मारा है। हाँ कौन सा, बिल्कुल आपने क्या तीर मारा है उसमें, आपको हाँ क्या मिल गया? जो एक बंदा उसकी जो हाँ रेस्टिंग प्लेस है, रेस्टिंग प्लेस जहां पे उसको हाँ दफना दी है, उसको वहां से हाँ मत हाँ उठाओ। हाँ या तो आपने उसको कादियान लेके जाना है, जो आप हाँ लोगों को स्टोरी सुनाते हो या कहते हो, हाँ तो वो तो हाँ समझ में आती है बात। हाँ मगर अगर आपने यहाँ से वहां, वहां से यहाँ करना है, हाँ ठीक है भाई, ख्वाब आया होगा मिर्जा यानी किसकी आसानी के लिए इन्होंने किया है? यहाँ क्या है कि जी वो मिर्जा ताहिर दी लाश जड़ी वो तड़प रही सी थी कि मेरी बीवी दूर है, उन्हें मेरे नाल ले पाओ, यानी क्या फजूल इनकी बातें हैं। लेकिन कहानियां ऐसी सुनाएंगे, वो जी फलाने को ख्वाब आया, ये हुआ, वो उनको ख्वाब में वो मिली, वो कह रही है मुझे मेरे खामन के पास सुला दो, इस तरह की बकवास इनकी होती है। मैं इन्होंने ऐसे लिए इनको यही कहता हूँ, मुझे बुला लो अपने दफ्तर, मुझे सब जानते हैं आपके दफ्तर में। हाँ हाँ तलाशी ले लेना, मेरे पास कोई हाँ बंदूक, मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ। हाँ 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 मैं कोई बुला लो। टेररिस्ट बैकग्राउंड भी नहीं है। हाँ तो मैं तुम्हें, तुम्हारे खलीफा भी जानते हैं, तुम्हारा हाँ अमीर जो है रफीक हयात भी मुझे बड़ी अच्छी तरह होना। हाँ पता है क्या, जिस दिन मैं गया ना इनके साथ, मैं हाँ आपको आज बता दूं, हम्म, मैं ये मुझे ले जाएं, पहले तो उन्होंने इनकी ना, इनको कहना है कि भाई जिस रस्ते तो ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ TikTok ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। इसीलिए मैं इनको कहता हूँ बुलाओ मुझे, मैं देखता हूँ कि तुम्हें इनको जमात इंटरटेन कैसे करती है, इनकी सुनने को तैयार है जमात वहां पे, बुलाओ मुझे अपने दफ्तर। हाँ बिल्कुल। तुम्हें अगर इतनी बल्कि जरूरत है, जमात वाले इन कीड़ों मकोड़ों से तो नहीं डरते, अलबत्ता आपसे जरूर खौफजदा है, इस वजह से कि आप इनसाइडर हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन है, उससे वो डरते हैं। तो इन भाईजान कीड़ों मकोड़ों को तो कुछ नहीं, वो मैं अगर बात कहेगा एक कान की गल पकड़ लो दसते यहाँ हैं, पे, तो वहीं पे कान पकड़ लेंगे। ये मुझे बुलाएंगे ना, मैं कल्ले नहीं जाना, मैं 10 बंदे लेके जाने ने। हाँ, वही और ना। 10 एप्लीकेशन जानिया ने उत्थे, 10 एप्लीकेशन या 5 एप्लीकेशन या 3 एप्लीकेशन, उन्होंने कहना हाँ रफीक हयात इसका क्या फैसला करवाया है, किधर है ये हाँ फाइल, ये तुम्हारे हाँ मुरब्बी, ये तुम्हारा अमूर आमा क्या काम कर रहा है, हाँ उन्होंने बिल्कुल। ए पूछना है।
आजकल पता क्या चूरन देते हैं ये, जो ज्यादा खत लिखे ना, कोई मसला है अगर दूसरे एमडी के साथ, हाँ उसको कहते हैं जी आपका मसला ना हमने रबवा भेज दिया, वहां का दफ्तर हैंडल करेगा। हाँ तो आप उसको टेलीफोन कर लें या व्हाट्सएप पे बात कर लें। तो हाँ भाईजान ए ना सारी चल रही है ना दी, बस एन जी इन्हों ने चलना है। वो दाखिले दफ्तर जो हो जाता है वो तो फिर गया उसका फैसला क्या होगा? बिल्कुल गया भाईजान, हो गया। ते मेरा मेरा चेहरा देख के ना रफीक हयात, गोंदल साहब और एक हफीज साहब ने, उन्हों का ब्लड प्रेशर ਉਂਝ ਹੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਹਾਂ हाँ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। हाँ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਸੀ ਬੰਨ ਦੇਣਾ, ਟੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ ਦੇਣਾ, 4 ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। हाँ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ देना, सिर्फ जुबान जुबान और मैं कैमरा जुबान ना बनाऊं, बंद करना। मैं अपना टिकटॉक ऑन कर सका बस। हाँ जिथे मैं गाल कड्डा ते चपेड़ मारना खिंच के मेरे मुंह ते। हाँ हाँ बिल्कुल। और जो ਇਹ ਗਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਔਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਗਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਢੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਕਦੀ। ਮੈਂ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਮगर ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੰਬਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏ ਲਾਹੌਰੀ ਗਰੁੱਪ, ਮगर ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹमेशा अपना बुजुर्ग समझ के गल करना वा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मैं आप हमेशा कहना कि नफीस बुजुर्ग आदमी है, आपका बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, तो जिसने और बुलाना ला लो भाजी, आपके रस्सी पास मतलब रस्सियां बांध के मालूमात लेके के जाओ। रूहानी खजाइन है आपके पास मालूमात के। मैं वो जिस दिन अपना टिकटॉक अपना व्हाट्सएप खोल के दस दिता ना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਤੇ हाँ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਂਟ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਦੀ, ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਦੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੋਤ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ। ਆਹਾ तो बस ਉਹ जो बाकी मैं कुछ नहीं कहता। ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਸ਼ 버ਗਰ ਖਾਣੇ ਆ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ honestly। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਬਲੀਗ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਪੀਸ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਪਡੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं है ना, हाँ तो फिर ਇਹਨਾਂ ਦੀ प्रॉब्लम है। देखिए वसीम साहब, आपका हक है, आप जैसा भी अकीदा रखें, जिसको आप चाहे माने, जिसको चाहे ना माने, वो कोई मसला ही नहीं है, आपका ये हक है, और इसमें कोई लड़ाई भी नहीं है। तो मैं अपनी वो तो जो गाली कदी आपके नहीं पास की। मालूमात हैं वो है असल, मैं अपनी क्योंकि कभी आपका गाली एक नहीं की। बैकग्राउंड है, आप रहते भी वहाँ हैं, बिल्कुल खलीफा ऑफ इस्लाम के कदमों में आप रहते हैं, तो आपके पास सारा कुछ पता है आपको। मैं ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਰੋਟੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਫਜ਼ਲ ਮਾਸਕ ਦੇ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਵਾ। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾइम मिनिस्टर ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। नहीं, आप वाटर साहब से क्यों घबराते हैं? अभी वाटर साहब तो खुद, उसको कुछ पता नहीं है, ना कोई दीन का, मैं ना घबराता नहीं हूँ वाटर साहब से। वाटर साहब ने कल ना आपसे तुम पे आ गए थे, इसलिए मैंने कहा फिर फायदा नहीं है। आपने पर्सनल बात करनी है, मैं 100 बिस्मिल्लाह, आप मेरे से पर्सनल बात करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जमात के बारे में करेंगे तो मैं ठीक है, आपके मैं अपने आपके जो है मिर्जा गुलाम अहमद को कुछ नहीं कहता, मगर मिर्जा मसरूर तो मेरे सामने पीस ऑफ अ शिट। नहीं नहीं, असल बात है कि पर्सनल तो होना ही नहीं चाहिए किसी से ना, आपकी जो पर्सनल लाइफ या किसी की, वो तो डिस्कस ही नहीं करनी चाहिए। मेन बात ये है कि वो जो कुछ आपने ऑब्जर्व किया है अपनी इस जिंदगी में, इस जमात में रहते हुए, वो आप बयान करते हैं। तो और किसने बयान करना है फिर, अगर आप नहीं करेंगे या आप जैसे लोग नहीं करेंगे?
हम जैसे लोग नहीं करेंगे। हम तो इसमें से निकल के आए हैं, हमारी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, अपनी हमारी एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमने शेयर करने हैं। तो इसमें क्या बुराई है भी? हम किसी की बात तो नहीं कर रहे। हाँ, इनको पर्सनल हम तो किसी की भी बात नहीं करनी चाहिए इनको ना। वाटर तकलीफ की पर्सनल हमें वो अपना आइडेंटिटी छुपाता है तो छुपाता रहे भी। तुम पता नहीं मर्द हो औरत हो, हमें क्या पता, तुम खुद जानते हो। लेकिन हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। जो मीना जी, उसका जो जो उसका इंस्टांस है ना खिलाफत के मुतल्लिक, वो बिल्कुल वो वही है जो पीरों फकीरों के साथ होता है। मेरा एक राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। जी। मैथमेटिक्स हिसाब का क्वेश्चन है। हाँ। हाँ, छुपाना नहीं चाहिए ना इनको। आप मुझे ये दिखा दो कि आपने पिछले 6 महीने में साउथ वेस्ट लंदन के अंदर कितने अहमदी किए हैं। क्वेश्चन एक ए। हाँ, आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगाने के? फ्री में तो आप लंदन आपकी जागीर तो नहीं है ना। आप दिखा सकते हैं ये चीजें, ये और वहाँ पार्लियामेंट में तकरीर करने पर कितने खर्च हुए थे? हाँ, कितने खर्च होते हैं। हाँ, अगर और आपने कितने एमडी किए हैं और हाँ, वो उनसे मिलवा सकते हैं, आप हाँ, दिखा सकते हैं। उत्थे आवाज बंद हो जाती है, हाँ। बंद बंद अब बंद देखें कितना बड़ा झूठ है। उत्थे फिर मिर- बदतमीजी स्टार्ट हो जाती है। मिर्जा ताहिर ने 2000 वो क्या है एक में कहा था हिंदुस्तान ने 4 करोड़ नई बैतें, यानी जो पहले थे वो तो है ही थे, 4 करोड़ नई बैतें। आप सवाए कादियान के जो दरवेशान है या उनकी औलाद है, और कहीं भी नहीं कोई। सानू ते छड़ दियो, झूठ कोई बोल रहे। एमडी पूछ लेना इन्हां कोलों ए हाँ, सवाल जो मैं पूछे ने। हाँ, ए ਉਹਦੇ ਨਾਲ नाराज हो जाते हैं सदर साहब नाराज हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। मेरा कोई 2 महीने पहले ना मुझे किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया। अच्छा। मैंने देखा ये उसमें सारे अहमदी थे। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा आपने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया है? हाँ, कहते हैं आप अहमदी हैं। मैंने कहा आपको किसने कहा मैं अहमदी हूँ? मैंने कहा मैंने तो 4-5 साल पहले जमात छोड़ दी हुई है। हाँ, मैंने कहा मुझे स्ट्रेट अवे निकाले, वरना हाँ, मैं आप पे ना केस करवा दूंगा। आप मेरी प्राइवेसी, मेरा नंबर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। हाँ। लकीली मैं घर सी, मैं 2-3 महीने पुरानी गल है। मैं सीधा पैदल ही चल के गया दफ्तर अच्छा। ते अमीर साहब दे दफ्तर सैकटरी बैठा सी। मैं क्या ए मेरा फोन देख लो ते ए अंदर ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਦਨਾਮੀ होएगी अगर मैं अपने एमपी दे कोल चला गया तो। नहीं वसीम साहब, कोई वैसी गलती नहीं है, आप हमारे ताल्लुकात हैं इतने साल पुराने, गलती हो ही जाती है। मैं क्या ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾत ਤੇ गलती क्यों ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है, हुन आ रही है। हाँ। तो मैं